हाइड्रा के एहलकारों ने जिले मेडचल के नागरम में गैर कानूनी तामीरात को जमींदोज कर दिया। कुछ दिन के वक्फे के बाद हाइड्रा की कार्रवाइयों का अहिया हुआ है। हुकाम ने चहारशंबे को जिले मेडचल के नागरम म्यूनिसिपैलिटी में इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी। हाइड्रा के एहलकारों पर मुश्तमिल 2 टीमें नागरम म्यूनिसिपैलिटी पहुंची, जहां पर रामपल्ली के करीब राजसुखनगर कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात को ढा दिया गया। हाइड्रा के ओहदेदारों की आमद और जेसीबी की कार्रवाई की वजह से मुकामी लोगों में खौफ व हरास का माहौल देखा गया। वो उनके मकानात गिराने के डर से खौफजदा और परेशान नजर आए। बताया गया है कि हाइड्रा के हुकाम ने उन्हें यकीन दिलाया है कि सिर्फ नोटिस दी जाएंगी और गैर कानूनी तामीरात को गिराया जाएगा। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर परेशान होने और कशीदगी पैदा करने से गुरेज करें। जगतियाल जिले के मलियाला मंडल के एक खानदान ने एमएलसी बालमोरी वेंकट की जानिब से उन्हें धमकियां दिए जाने का इंकशाफ किया है। जराये ने बताया है कि करकाला नरसैया ने 30 साल कबल जगतियाल जिले के मलियाला मंडल के मनाला गांव में बालमोरी वेंकट के वालिद मदन मोहन राव से 3 एकड़ 30 गुंटे अराजी खरीदी थी। खानदान के मुताबिक बालमोरी वेंकट गुंडों के जरिए उन्हें ये धमकियां दे रहे हैं कि अराजी का रजिस्ट्रेशन ना किया जाए। खानदान का कहना है कि वो इतने दिन से खौफजदा थे, इसलिए मीडिया के सामने नहीं आए थे, लेकिन अब वो अपनी अराजी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। करकल नरसయ్య బల్మూరి మదన్ మోహన్ దగ్గర కొన్న 3 ఎకరాల 30 గుంటలు కొని నేను దుబాయ్ పోయిన పైసలన్నీ కట్టి పోయి వచ్చే వరకు దొర చనిపోయిండు. ఆయన ఉంటే చేసి ఆయన మంచోడే. ఈమె చేస్తా ఈమె పట్ట చేసుడు లేదు. ఇల్లు కట్టించుకుంది, పైసలేగా పెట్టింది. దొరను పోయి అడిగిన ఏమయ్య దొర పట్ట చేస్తాను అనేది చేయపోయారంటే నీకు కాకపోతే వాళ్ళకు చేస్తావు నరసయ్య చేస్తావు నీకు అన్నారు. చేసుడు లేదు. అవి కొత్త పాస్బుక్లు వచ్చినాక పైసలు ఇస్తా అన్నాడు. ఎంఆర్ఓ ఇయ్యకమన్నాడని మళ్ళీ చెప్పాడు దొరస పాకాశరావు దొర సుతా కొన్నది నువ్వద్దేనా నా ముందెట్ట పైసలు కట్టే పట్ట చేయరి దొరసానంటే ఇడికెళ్ళి పోతాత నువ్వు మాట్లాడకని అలా దొరను చూతా అన్నది. పట్ట చేస్తలేదు. ఆ దొరతోటి మాకు పెద్ద తిప్పలు ఉంది. అంతా గుండెతనమే, లంగతనం. ఒకసారి సాకరోళ్ళ మీదకి హైదరాబాద్ నుంచే 20-30 మందిని తోలుకొచ్చి కొట్టుటానికి ఆ భాస్కర్ రావు దొర అనేటైనా మేము 5-6 కలిసి ఆపినాం. ఆయనతోటి పెద్ద మాకు ప్రమాణం ఉంది. నా పేరు స్వప్న, మాది మానల గ్రామం. ఎమ్మెల్సీ బాల్మూరి మదన్ మోహన్ దొర వల్ల స్వగ్రామం ఇది. మేము దొర వాళ్ళ నాన్న దగ్గర ఒక 30 సంవత్సరాలు అవుతుంది అనుకుంటా దాదాపు. అప్పుడు మా నాన్న కరకల్ నరసయ్య అనే వ్యక్తి ఏం చేసిండంటే ఆ దొర దగ్గర మేము 3 ఎకరాల 30 గుంటల ల్యాండ్ని మేము కొనుగోలు చేసినప్పటికీ మా బాపు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత దుబాయ్ వెళ్ళిండు. వచ్చేసరికి దొర చనిపోయిండు. సాదా బైనామా కింద కొనుగోలు చేసినాం. బట్ మాకు అది ఇప్పటి వరకు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వలేదు. దానికోసమని బల్మూరి మా వెంకట్ దొర వాళ్ళ అమ్మ బల్మూరి పద్మా దొరసాని దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే ఆమె చేస్తాం అని చెప్పి మమ్మల్ని వాళ్ళ చుట్టూ తిప్పించుకొని ఇల్లు కట్టండి అని చెప్పి ఇల్లు కట్టిపించుకొని 12 లక్షలు ఎగబెట్టింది. ప్లస్ మళ్ళీ మాకు ల్యాండ్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయట్లేదు. వెళ్ళి అడిగితే మిమ్మల్ని చంపుతాం అది అని బెదిరిస్తున్నాడు. వాళ్ళ వల్ల మాకు ప్రాణభయం కూడా ఉంది. మమ్మల్ని కాపాడండి వాళ్ళ నుండి. ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్ దొర దగ్గరికి వెళ్ళి దొరసాని చేస్తా అని చేయట్లేదు దొర, కనీసం మీరన్నా చెప్పండి దొరసానికి అని అంటే చెయ్యం మేము, ఏం చేస్తారో చేసుకోండి అది అని అనేసి బెదిరించిండు. ఇంకోసారి ల్యాండ్ గురించి వచ్చి మాట్లాడితే కూడా మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టాం మేము, అసలు ఏమనుకుంటుర్రు అది అని అనేసి చాలా రూడ్గా మాట్లాడిండు. ఏమంటుండంటే ఆయన మా నాన్న వెనుకటమ్మిన భూములన్నీ ఎవరెవరికి అమ్మిండో వాళ్ళందరి దగ్గర నుండి నేను ఇప్పుడు తీసుకొని ఆ ల్యాండ్ అన్నిటికీ ఫెన్షింగ్ చేపిస్తా అని అనేసి భయంకరంగా మాట్లాడుతుండే. ఆయన వల్ల మాకు ప్రాణభయం కూడా ఉంది. ఆ దొరసాన్ని కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు బూతులు తిట్టి పంపించేసింది మమ్మల్ని అక్కడి నుండి. बोराबंडा में पुलिस ने मुबैना तौर पर पान शॉप के मालिक पर हमला किया। पुलिस की कार्रवाई वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जराये ने बताया है कि बोराबंडा में एक पान शॉप के मालिक ने, जिसकी शिनाख्त जाफर के तौर पर की गई है, मुकामी पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि मुकर्ररा वक्त पर दुकान न बंद करने पर उस पर हमला किया गया है। सीसीटीवी में कैद होने वाले इस वाक़े ने तनाज़े को जन्म दिया है और इलाके में कानून नाफिज करने के तरीक़ों पर भी सवाल उठने लगे हैं। जाफर का दावा है कि रात गए कुछ पुलिस एहलकार वहां पहुंचे और अंधाधुंध लाठियां बरसाई, जिसके नतीजे में उसकी पैर पर चोट आ गई। उसका कहना था कि वो अपनी दुकान बंद कर रहा था कि पुलिस एहलकार पहुंच गए और उसे मारना शुरू कर दिया।
दूसरी जानिब बोराबंडा इंस्पेक्टर ए वीरा शेखर ने पुलिस के एहलकारों की कार्रवाई का दिफा करते हुए वजाहत की कि एक कांस्टेबल ने पान शॉप पर रात देर गए इकट्ठा होने वाली भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल ने उन्हें डंडा मारा क्योंकि कई लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। इंस्पेक्टर ने इलाके में हाल मुजरिमाना सरगर्मियों पर भी रोशनी डाली और कहा कि गांजे की खरीदो फरोख्त, कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उन्होंने निशानदेही की है कि पान शॉप गैर कानूनी तौर पर चल रही थी और पान शॉप के आसपास का इलाका शरपसंदों और गांजा बेचने वालों के लिए गढ़ बन चुका है। पुलिस इंस्पेक्टर ने पान शॉप के मालिक जाफर के जख्मी होने के दावों की भी तरदीद की और कहा कि वो जख्मी नहीं हुआ है। पुलिस एहलकारों की इस कार्रवाई के बाद मुकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैदराबाद के जोनल यूनिट ने आंध्र प्रदेश के कादेरी में जिंदा पेंगोलिन बाजियाब करते हुए वाइल्ड लाइफ एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। ज़राए ने बताया है कि DRI की हैदराबाद जोनल यूनिट ने आंध्र प्रदेश के कादेरी में एक जिंदा पेंगोलिन को बचा लिया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की दफात के तहत मामला दर्ज करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि जंगली जानवरों की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस स्मगलर्स के एक गिरोह की जानिब से जिंदा पेंगोलिन की फरोख्त के लिए मुमकिना खरीदारों की तलाश की जा रही थी। एक मखसूस इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पर कार्रवाई करते हुए DRI के अफसरान ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है और जिंदा पेंगोलिन की गैर कानूनी तिजारत करने की कोशिशों को बेनकाब कर दिया है। खरीदार बनकर अफसरान कादेरी पहुंचे और कई बार बातचीत के बाद स्मगलर जिंदा पेंगोलिन को पटसन की बोरी में कादेरी पुलीवंदला रोड के एक दूर दराज वाले मुकाम पर ले आए। वहां पहले से ही मौजूद अफसरान ने स्मगलर्स को पकड़ लिया और पेंगोलिन को बाजियाब कर लिया है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का कहना है कि BRS लीडर KTR ने फार्मूला ई रेस केस से बचने के लिए दिल्ली का दौरा किया है। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए साबिक रियासती वजीर KTR के दौरे दिल्ली को F1 रेस स्कैम से बचने की कोशिश करार देते हुए कहा कि KTR के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत की हिदायत पर ACB ने गवर्नर तेलंगाना से इजाज़त तलब की है और गवर्नर की इजाज़त मिलने के बाद KTR के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत की कार्रवाई से मुताल्लिक़ इल्म होने के बाद साबिक रियासती वजीर दिल्ली पहुंचकर मदद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस स्कैम में बख्शा नहीं जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत से साबिका हुकूमत के दौर की बदउनवानियों की तहकीकात की जा रही है और तहकीकात से बचने साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के फर्जंद मुसाबिक वजीर KTR दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि KTR कितनी ही कोशिशें क्यों न कर ले, ACB को गवर्नर की इजाज़त के बाद तहकीकाती ओहदेदारों का सामना करने के लिए KTR को तहकीकात में ताउन करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत के पास शवाहिद मौजूद है। नलगुंडा जिले के चिटियाला मंडल में टायर फट जाने से DCM वैन उलट गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया है कि नलगुंडा जिले के चिटियाला मंडल के गंडरोमपल्ली के करीब DCM वैन उलट गई। टायर फटने की वजह से यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के हेड मास्टर्स को SSC तलबा की इम्तिहान की फीस की अदायगी के लिए चेक्स हवाले किए। रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम चलाने के बाद मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी शहर हैदराबाद लौट गए हैं। उन्होंने चारशंबे को पार्टी के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में 87 सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के हेड मास्टर्स को 1486 SSC के तलबा की इम्तिहान की फीस की अदायगी के लिए चेक्स हवाले किए। इस मौके पर अरकान असेंबली, पार्टी के सरकर्दा कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। निर्मल में ACB अफसरान ने म्यूनसिपल दफ्तर में छापा मार कर एक अफसर को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़राए ने बताया है कि निर्मल में ACB के ओहदेदारों ने म्यूनसिपल दफ्तर में छापा मारा। इन छापों के दौरान म्यूनसिपल जूनियर असिस्टेंट शाकिर को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया गया है कि सर्विस बुक एंट्री के लिए आने वाले अफराद से
जूनियर असिस्टेंट की जानिब से रकम का मुतालबा किया था। मुतासरा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ओहदेदारों ने अफसर को रंग के हाथों पकड़ लिया। कोडंगल जाने वाले बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डीके अरुणा को पुलिस ने मन्नेगुड़ा में रोक दिया। डीके अरुणा ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार किया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डीके अरुणा के कोडंगल हलके के लागा चरला के दौरे के नतीजे में कशीदगी पैदा हो गई थी। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीके अरुणा को मन्नेगुड़ा में रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर वो सड़क पर बैठ गई और एहतजाज दर्ज करवाया। बीजेपी रहनुमा को रोकने के खिलाफ दीगर कायदीन भी सड़क पर बैठ गए। एमपी डीके अरुणा ने कहा कि उनकी तौहीन की गई है। उन्होंने पुलिस पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो एक रुकने पार्लियामेंट है, क्या उन्हें अपने हलके के लोगों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर का मसला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वजह से है और वो कलेक्टर से मुलाकात करने जा रही हैं। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात का वक्त भी लिया है। अमन अमान के मसले पर डीके अरुणा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की और कहा कि सबसे पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की है और गैर कानूनी गिरफ्तारी को बीआरएस के खिलाफ साजिश करार दिया है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए कहा कि पिछले 11 महीनों के दौरान रियासत में हुकूमत की रही है, सिर्फ महकमा पॉलिसी है जो कांग्रेस कायदीन की हिदायत पर मौसर तरीके से काम करता नजर आ रहा है। उन्होंने पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि गैर कानूनी गिरफ्तारी उसी साजिश का हिस्सा है कि इस वाक़े को बीआरएस पार्टी से मंसूब किया जाए ताकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की छवि को खराब होने से रोका जा सके, क्योंकि चीफ मिनिस्टर अपने ही हलके कोडंगल में किसानों की बगावत से परेशान है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि गैर कानूनी मुकदमात में अवाम की जानिब से लड़ने वाले बीआरएस के नुमाइंदों की गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की जाती है। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीआरएसवी कायदीन का एहतजाज देखा गया। नाराज कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। चारशंबे को कोडंगल के साबिक एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और लागचरला गांव के किसानों की गिरफ्तारियां भी अमल में आ रही हैं। साबिक एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी और लागचरला गांव के किसानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ बीआरएसवी कायदीन ने चारशंबे को उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। दरियासना नाराज कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। आजाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आजाद ने बुलडोजर कार्रवाई से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को बुलडोजर कार्रवाइयों के हवाले से एक तारीखी फैसला सुनाया है, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया है कि रियासती हुकूमतें किसी भी फर्द की जायदाद को महज इल्जाम की बुनियाद पर तबाह नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि ये अमल आइन के तहत अफराद के हुकूक की खिलाफ वर्जी है और इसका मकसद कानून की हुक्मरानी की जमानत देना है। आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद ने बुलडोजर एक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। उनका कहना था कि जब तक कोई कसूरवार साबित नहीं होता या फिर अदालत फैसला नहीं सुनाती, किसी का घर गिराया नहीं जा सकता। वो इस तारीखी फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर अपने दामाद की कंपनी की खातिर किसानों पर जुल्म करने का इल्जाम आयद किया है। केटीआर ने तेलंगाना भवन में कोडंगल में अवामी बगावत, पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी, रियासत में अराजी के असूल के नाम पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए किए गए जुल्म के मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने दामाद की कंपनी की खातिर किसानों पर जुल्म कर रहे हैं और रेवंत के हुक्म पर ही कोडंगल के किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया है। केटीआर का कहना था कि कोडंगल के किसानों ने चीफ मिनिस्टर
BRS के कायदीन और BJP से मुलाकात की, क्योंकि वो फार्मा विलेज नहीं चाहते, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बगैर सोचे समझे फैसले ले रहे हैं। कोडंगल में इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। पटना नरेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसानों को घसीटा जा रहा है और आधी रात को उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जो कि काबिल मजम्मत और काबिल तशवीश है। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी के दामाद की मैक्स BN कंपनी की तोसी के लिए किसानों की अराजियात छीनी जा रही हैं। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के जोलूरुपाडु मंडल में एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी माशूका का कत्ल करके उसकी नाश के टुकड़े करके उन टुकड़ों को खेत में दफन कर दिया। जराये ने बताया है कि जोलूरुपाडु मंडल के मशीनी पेट में वीरभद्रम नामी एक शख्स ने 3 दिन कबल अपनी माशूका स्वाति का बेदर्दी से कत्ल किया। बाद नाश के टुकड़े करके उसे बोरी में डालकर खेत में दफन कर दिया। इस वाक़े का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब पुलिस ने एक मामले में स्वाति की तलाश शुरू की। बताया गया है कि स्वाति और वीरभद्रा ने एक जोड़े से सिंगारेनी में मुलाजिमत फराहम करने के लिए 16 लाख रुपये लिए थे और नौकरी फराहम नहीं की थी, जिसके बाद मुतासरीन ने खुदकुशी कर ली थी। स्वाति और वीरभद्र के दरमियान 16 लाख रुपयों को लेकर तनाज़ा हुआ था, जिसके बाद वीरभद्र ने स्वाति का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। रियासती वजीर D श्रीधर बाबू ने कलेक्टर और किसानों के एक गिरोह पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए मुकम्मल तहकीकात का हुक्म जारी किया है। विकाराबाद जिला कलेक्टर और किसानों के एक गिरोह पर होने वाले हमले की वजीर D श्रीधर बाबू ने शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ओहदेदारों ने किसानों की राय जानने के लिए वहां का दौरा किया था, लेकिन उन्हें मज़ाहमत का सामना रहा। मीडिया से बात करते हुए D श्रीधर बाबू ने कुछ सियासी अनासिर खास तौर पर भारत राष्ट्र समिति पर कलेक्टर के खिलाफ जारहाना कार्रवाई करने के लिए अवाम को उकसाने का इल्जाम लगाया और कहा कि लोगों में बेचैनी पैदा की गई है और जानबूझकर सरकारी स्कीमों के निफाज में रुकावट डाली जा रही है। श्रीधर बाबू का कहना था कि ऐसा लगता है कि BRS के कुछ रहनुमा अपना सियासी असर व रसूख खोने से मायूस होकर हुकूमती इक़दामात की पेशरफ्त में खलल डालने की कोशिशें कर रहे हैं। रियासती वजीर ने यकीन दिलाया है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब कार्रवाई करेगी कि इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश न आए। उन्होंने कहा कि तहकीकात मुकम्मल और शफाफ तरीके से की जाएगी। सड़कों और इमारतों के वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि अगर कोई हुसूल अराजी में रुकावट डालता है तो PD एक्ट जैसे सख्त कानून लागू करते हुए उसे उम्र भर के लिए जेल में डाला जाएगा। मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अगर हमले किए गए तो PD एक्ट दर्ज करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि फ़ोन टैपिंग मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, हर एक को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। रियासती वजीर ने याद दहानी करवाई कि पिछली हुकूमत ने मौलाना सागर की तामीर के लिए दलितों और BC के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे। वो रेफरेंडम के लिए आए कलेक्टर पर हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। KCR को कलेक्टर पर हमले का जवाब देना चाहिए और अवामी तौर पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बताया कि पुलिस तमाम ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। KTR या फिर चाहे कोई और इसके पीछे हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रियासती वजीर ने यह भी कहा है कि हुसूल अराजी के मामले में अगर कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो PD एक्ट जैसे सख्त कानून लागू करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसे उम्र भर के लिए जेल में डाला जाएगा। हिंदुस्तान के वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से मुलाकात की। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। हिंदुस्तानी वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब दिफा और सलामती समेत कई शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। उनका कहना था कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी का मुकाबला करने, इंतहा पसंदी का मुकाबला करने, दहशतगर्दी की माली एआनत और मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने कसीर जहती फोरम पर आला सतही राब्तों और हम आहंगी की अच्छी रफ्तार को बरकरार रखा है। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, ताउन और बाहमी एहतराम की
دیرینہ بنیاد پر استوار ہیں۔ سعودی عرب بین الاقوامی امن، سلامتی اور معاشی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف امور پر اپنے موقف کو برقرار رکھے گا۔ یاد رہے کہ سعودی وزیر خارجہ گزشتہ روز ہندوستان کے 2 روزہ دورے پر دہلی پہنچے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔ ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس کی ٹیم نے سلطان دائرہ قبرستان واقع چنچرگوڑہ میں کل رات اچانک تلاشی مہم انجام دیتے ہوئے بعض افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق مذکورہ نوجوانوں پر الزام ہے کہ وہ احاطہ قبرستان میں شراب نوشی کر رہے تھے۔ اسی دوران پولیس نے 19 سالہ طالب علم چندو ساکن گاندھی نگر خیرتآباد، 37 سالہ محمد صادق ساکن کرماگوڑا کو حراست میں لے لیا۔ نئی نویلی دلہن نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ عطاپور پولیس اسٹیشن کی حدود کے رام باغ علاقے میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سدھیشوری نامی خاتون کے خودکشی کی اطلاع کے بعد عطاپور پولیس وہاں پہنچی، جس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ بھیج دیا اور اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ غازی آباد سے قاضی پیٹ کی سمت آنے والی مال بردار ٹرین پیداپلی کے قریب پٹریوں سے اتر گئی۔ اس واقعے کے نتیجے میں ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی محکمہ ریلویز کے عہدیدار وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وقار آباد کلکٹر اور عہدیداروں پر حملے کے واقعے کی سخت مذمت کی اور کہا کہ وقار آباد واقعے کی کسی بھی مجرم کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں 10 سال تک حکمرانی کے بعد BRS قائدین کا عہدیداروں پر حملے کی مذمت کرنے کے بجائے حملہ آوروں کی تائید کرنا ریاست کے لیے ان کی گھٹیا سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ کوڑنگل کے سابق رکن اسمبلی پٹنم نریندر ریڈی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے KBR پارک میں صبح میں چہل قدمی کے دوران انہیں حراست میں لے لیا۔ ان کو حراست میں لینے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ RTC ڈرائیور خاتون مسافر کے بیگ سے سونا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ یہ خاتون RTC بس میں ورنگل ضلع سے نظام آباد جا رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ جس میں سونے کے زیورات تھے ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے رکھ دیا، لیکن ڈرائیور نے اس بیگ سے سونے کی چوری کر لی۔ اسی دوران ایک مسافر نے اس واردات کو اپنے سیل فون میں قید کر لیا۔ بنڈاگوڑا کے وادی فرحان میں آشرواد کمپنی کے نقلی پائپس کے ریکٹ کا پتہ چلا۔ ایک مستری نے دکان سے یہ پائپ خریدا اور اس نے خراب کوالٹی کی شکایت کمپنی سے کی، جس پر کمپنی کے ذمہ داروں نے اس سے پوچھا کہ کس دکان سے ان پائپس کو خریدا گیا ہے۔ انہوں نے دکان کا معائنہ کیا، جس پر دکان مالک نے کہا کہ اعظم نامی شخص نے یہ پائپس فروخت کیے ہیں۔ ٹاسک فورس نے گھر پر دھاوا کرتے ہوئے 8 تا 10 لاکھ روپے کے ان پائپس کو ضبط کیا۔ ہندوستان میں نیدرلینڈ کی سفیر ماریسا گریٹرس نے نئی دہلی میں کیمپ آفس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ یہ ایک خیر سگالی ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں TSIIC کے مینیجنگ ڈائریکٹر وشنو وردھن ریڈی اور ریزیڈنٹ کمشنر ڈائریکٹر گورو اپل بھی موجود تھے۔ سدھی پیٹ ضلع میں تیندوے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے برگو پلی میں یہ تیندوے کے بچے نظر آئے، جس پر خوفزدہ مقامی افراد نے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو اطلاع دی۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ چوکس رہیں۔ کوڑنگل میں فارما سٹی کے قیام کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کسانوں نے کہا کہ وہ یہاں پر مجوزہ فارماسٹی کے قیام کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اراضیات وہ کسی بھی صورت میں حکومت کو نہیں دیں گے۔ ان کسانوں کو احتجاج کرنے پر پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔
निजामपेट और JNTU के दरमियान कविता ज्वेलर्स के करीब सड़क को नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने या किसी की हलाकत की कोई इत्तला नहीं मिली है। हुकाम ने मुसाफिरीन को मशवरा दिया कि वो कोलन राघवा रेड्डी गार्डन से JNTU पहुंचने वाली रूट का इस्तेमाल करें। GHMC वेटरनरी ऑफिस कुकटपल्ली जोन के अमले ने अलवाल सर्कल में नॉन वेज दुकानों का मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक इन मायनों के दौरान मुख्तलिफ बेकायदगियों का पता चला। इन बेकायदगियों पर जुर्माने आयद किए गए। गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल हनमकुंडा से रुजू होने वाले मरीजों ने शिकायत करते हुए कहा कि दवाखाने में कई मुकामात पर चूहे देखे जा रहे हैं। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि ये चूहे मरीजों पर हमला भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क़ब्ल भी कई मरतबा हुक्काम से इस सिलसिले में शिकायत की गई, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर IT व इंडस्ट्रीज श्रीधर बाबू ने कहा है कि तेलंगाना में आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में काफ़ी तरक्की देखी जाएगी। उन्होंने ग्लोबल लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर के दफ्तर का इफ्तिताह किया। बादअज़ा मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि आइंदा 4 माह में हैदराबाद के करीब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी तामीर की जाएगी। झारखंड में पोलिंग का पहला मरहला शुरू हो गया है। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने रांची में एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। दिल्ली एयरपोर्ट पर 29.28 करोड़ रुपए मालियत की 7.3 किलो हीरोइन जब्त की गई। कस्टम के हुक्काम को बैंकॉक के एक मुसाफिर के पास से ये हीरोइन मिली। हीरोइन को पॉलिथीन में बेहतर तौर पर पैक किया गया था और उसे ले जाया जा रहा था। ताहम स्मगलिंग की इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए इस हीरोइन को जब्त कर लिया गया। रिलायंस इंडिया लिमिटेड आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। 500 जदीद बायोगैस प्लांट्स लगाने के इक़दाम किए जाएंगे और 2.5 लाख रोजगार के मौक़े पैदा किए जाएंगे। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए हैं, जिससे कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स के लिए 65,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की गई है। इस शराकतदारी से रियासत में 2.5 लाख रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। वो हिंदुस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की सियासी, सिक्योरिटी, समाजी और सकाफती कमेटी के दूसरे इजलास की सदारत करेंगे। ये दौरा हिंदुस्तान और सऊदी अरब के कसीर जहती ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत फराहम करेगा। वायनाड लोकसभा हल्के की कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि वायनाड के अवाम उन्हें उनके लिए काम करने और उनका नुमाइंदा बनने का मौका फराहम करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अपना जमहूरी हक़ अवाम इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुंतखब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इन दिनों कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे गैर ज़रूरी तौर पर उन पर नाराज़ हैं और बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे उन पर नाराज़ न हों क्योंकि वो उनकी उम्र का एहतराम करते हैं। अगर वो नाराज़ हो जाना चाहते हैं तो हैदराबाद के निज़ाम पर नाराज़ हों क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम के रज़ाकारों ने उनके गांव को जला दिया, हिंदुओं को बेदर्दी से कत्ल किया और उनकी वालदा के साथ साथ बहन और उनके अरकान ख़ानदान को जला दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।